पीपल एज्यूम कि अगर तुम SC ST से हो तो तुम काले हो गए। वुमेन्स का वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इट इज हायर इन पाकिस्तान, हायर इन बांग्लादेश, और हम उड़ते हैं कि हमने वुमेन को कुछ ऐसा कुछ। तुम भाई नॉर्थ में इंग्लिश तुम ये ढंग से ये पढ़ नहीं पाते हो एंड यू आर एक्सपेक्टिंग अस टू रीड हिंदी। कंपेयर टू द वर्ल्ड, द डिवोर्स रेट्स इन इंडिया आर द लोएस्ट। So what do you think, it's just for the Muslims or just for a single community, or it's for everyone? तुम्हारी ग्रेड्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो तुम कितने भी अच्छे हो सकते हो, कितने भी स्ट्रीट स्मार्ट हो सकते हो, तुमसे लोग उतना बात नहीं करेंगे, तो यू विल फील लाइक एन आउटसाइडर। Casteism है इसमें। One general category candidate, he is already 5 to 10 steps ahead. Have you heard this song System? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यू स्टूडेंट में, और मैं हूँ आदित्य। हम सब जेनजी जनरेशन के हैं, और जब जेनजी की बात होती है तो सबसे पहले आता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को अगर हम लोग पुराने ज़माने की भाषा में बात करें तो कुछ लोग बोलते हैं कि वो ठीक नहीं है, या फिर उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, या फिर उन पे मुद्दों की बात नहीं होती है। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मुद्दों की बात करते हैं। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने हमेशा से मुद्दों की बात करी है। तो स्वागत करिए हमारे साथ हमारे आज के गेस्ट लक्ष्य जी का। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। Thank you so much for कैसे हैं सर आप? I'm doing really well. And today That's the weather has nice. also been really good, no rain or anything. So. थैंक यू सो मच सर। सर, सबसे पहले मैं जो आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आपकी बात है, जो शुरू से एक लक्ष्य स्पीक्स, द नेम वर्ड्स इटसेल्फ, लक्ष्य स्पीक्स, व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर? So if I give you some background, I come from IIM Indore. My MBA is in finance, and you must be thinking, यार ये बंदा finance का है, इसको corporate में काम करना चाहिए। And मैंने किया भी है corporate. I started off with private banking when I started my career. But how did I get here? The reason is, ever since a young age, like for example, I'll tell you the story of CA/NRC. CA/NRC, that issue when it came. Now, a lot of people might agree with me, might not agree with my stance, but I felt as a citizen of this country, I have my right, fundamental right to keep my opinion out there. कि हम agree नहीं करते हैं as a young student. And I was of the belief कि IIT IIM जो हैं, जो जिनको बड़े colleges माने जाते हैं, you should have the right to be publicly saying, I do not agree with this certain bill. And during that time, when all of India, students, non-students, everyone was protesting, we at IIM Indore tried to do a protest. And the administration of IIM Indore, जो IIMs are considered, one of the top colleges, and यहाँ के लोगों को बार बार यही बताया जाता है कि तुम bright students हो, तुम सबसे ज़्यादा कमाने वाले हो, तुम देश को तरक्की करके तुम आगे लेके जाओगे. And it was not a smooth experience. The college said, तुम parents से permission लिख के लाओ, placements होंगे, companies नहीं आएंगे अगर तुम ऐसे चीज़ें करोगे, political चीज़ें करोगे तो. ठीक है, fair, we let it pass. Second thing, जामिया में, if people know rightly, if they remember correctly, जामिया मिलिया इस्लामिया के library में, the Delhi police of that time, they did तोड़फोड़. They put a flashbang inside the thing जहाँ पे students थे, unarmed students थे, and that was, we saw collectively, it's an attack on students. You might not agree with the politics of Jamia, or might agree, whatever be the case, but you should not treat students like that in a democracy. So we just wanted to do a solidarity. We students of IIM Indore, not all of us, at least some, want to publicly show that हम solidarity के साथ हैं with the students of Jamia. And इसके लिए when we wanted to do it, the administration said, तुम ना photos लोगे, तुम ना कहीं post करोगे, ना तुम किसी को बताओगे. फिर पॉइंट ही क्या हुआ सारा प्रोटेस्ट का? ये तो फिर अपने ही बेडरूम में तुमने कुछ कर लिया तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ ना. तो व्हाट आई रियलाइज्ड इज दिस होल फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो एवरी इंडियन का एक संवैधानिक हक है, इट्स लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट यू हैव, दैट इज ओनली मोस्टली ऑन पेपर. एंड इफ IIMs का ये हालत है, वन कैन ओनली इमेजिन नॉर्मल लोगों का कैसे होगा, नॉर्मल कॉलेज जो लोग नॉर्मल इसमें जाते हैं, एंड इवन प्राइवेट कॉलेजेस में तो यू नो. And the point is, these people, जो हम young लोग हैं, even if you're not even turning 18, you are the future voters of the country. You decide the next future. To tell students कि नहीं आप political मत बनो, what are you telling them? To not be involved in the affairs of the country. तुम चाहते हो कि हम पढ़ लिख के हम जॉब करें, देश को GDP में कंट्रीब्यूट करें, बट जो GDP से टैक्स कलेक्ट होगा वो कहाँ पे खर्च होगा वो तो पॉलिटिशियंस डिसाइड करेंगे ना. As much as you need people in IAS, IPS, UPSC roles, in the army, in proper this roles, and also in the private sector, entrepreneur, Shark Tank करते हुए, you also need same kind of smart people in politics. Because at the end of the day, जो देश का direction decide करता है, that is politics, and you need politicians who are like that. And I was like, this thing, if we are from IITs, IIMs, and हम हमारे कॉलेज से कितने लोग UPSC में जाके ये they become big officers, they so many of them have so many startups जो Shark Tank तक जाते हैं, unicorns बनते हैं.
then we should also have people who are in politics, because these three things go together. देश कोई entrepreneur से ही आगे नहीं बढ़ता है, देश कोई defense से ही आगे नहीं बढ़ता है, देश कोई यूपीएससी वालों से ही आगे नहीं बढ़ता है. Politicians are also part of the equation. And why are we not targeting that equation was my thing. And that is when I realized that if I'm writing something and so many people are resonating with it, because मैंने जब start किया था मेरे account का, I was so afraid of things, consequences होंगे. मेरा नाम तक नहीं था, it was an anonymous account, no face, no name, and I was writing things and I still got around 20,000 people who followed. तो मेरे को पता चला मुद्दे जो ऐसे हैं, they are impacting people are relating to it. And then once I at a point I quit my job and I came to Delhi for preparing for UPSC, and then that time I was like अभी तो corporate का कोई problem नहीं है, because if you're in private sector and you're working and you talk about politics, the first thing the haters would do is they'll contact your company कि ये बंदा है आपके अंदर काम कर रहा है, ऐसी चीज़ें लिख रहा है, तो इधर आपको HR बोलेगा बंद कर लो या फिर आप निकल जाओगे, तो वही होना है. So I was preparing for UPSC, I did not have that barrier. So I was like, let me do this, let me put my opinions out there unfiltered. And that took me to, never expected these many people would resonate. But here we are. So that is why I started talking about politics, because someone has to do it, man. हमारे जनरेशन हम लोग नहीं करेंगे, कौन करेगा? सही बात. कोई बाहर से आके तो हमारे लिए बात नहीं करेगा. सो मैं जैसे कि एक चीज़ देख रहा हूँ, जैसे DU है, JNU है, जामिया, यहाँ पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स बहुत एक्टिव है, स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं. बट वहीं पे जैसे आपने बोला ही IIT, IIMs में या कॉर्पोरेट सेक्टर में पॉलिटिक्स थोड़ी सी कम है, या मैं कहूँगा बहुत कम है. तो व्हाट डू यू थिंक इसका सबसे मेजर रीज़न क्या है कि मतलब ऐसा क्या ये लोग चाह रहे हैं कि बिल्कुल जो कॉर्पोरेट सेक्टर है पॉलिटिक्स से रहे या फिर वो पॉलिटिकल रहे, उसका क्या रीज़न है? See, two things. One, I would say Delhi University, along with studies, there are avenues to do so many other things. इतने सारे कमिटीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे डिबेटिंग का कल्चर है एंड फेस्ट्स का कल्चर है. व्हेन यू हैव सो मेनी एवेन्यूज, देन पॉलिटिक्स ऑल्सो इज वन ऑफ देम. तो व्हाट आई हैव सीन इज Delhi University students, as much as smart they are, you'll find a lot of people are also very good at socializing, very good at street smart happening, and even debating वगैरह में देखोगे Delhi University students, they're very loud when it comes to अपना point रखना. हाँ, whereas जो IIT IIM का जो कल्चर है, I'll start with IITs. जो IIT के लिए आप जब प्रिपेयर करते हो, the whole JEE prep, the exam in India, it's so like the competition is so extreme. The person who is preparing for JEE रैंक लाने के लिए वो अपना लाइफ का 4-5 ऐसा सैक्रिफाइस करके पढ़ता है ना, वो किताबों के बाहर वो दुनिया जानता ही नहीं है. एंड द एग्जाम इज सो टफ, द सिस्टम फोर्सेस दैट पर्सन टू बी इन सच अ वे. तो ये लोग बस पढ़ाई करते रहते हैं. वेरी लिटिल सोशल लाइफ और वेरी लिटिल इधर स्पोर्ट खेलना, हॉबी रखना, बिकॉज द सिस्टम डजंट अलाउ यू हैव टू बी दैट फोकस्ड. एंड कंसिडरिंग द डिफिकल्टी ऑफ दीज एग्जाम्स, तुम 17-18 साल के बच्चों को यू आर मेकिंग देम गो थ्रू सच डिफिकल्ट एग्जाम्स इन अ यंग एज, बिकॉज कॉम्पिटिशन ऑब्वियसली. तो द अपब्रिंगिंग ओनली लेवल पे वो बहुत ही अलग हो जाते हैं. एंड देन वंस दे गेट इन टू द IITs ऑल्सो, इट्स हाइपर कम्पिटिटिव. एंड वो जैसे Delhi University for example, even if your marks are not that great but you're excelling in other avenues of life, you're still accepted in the crowd. तुमको लोग पहचानेंगे. IITs में the metric in IITs and IIMs is your grade. तुम्हारी ग्रेड्स अच्छी नहीं आ रहे हैं तो तुम कितने भी अच्छे हो सकते हो, कितने भी स्ट्रीट स्मार्ट हो सकते हो, तुमसे लोग उतना बात नहीं करेंगे. तो यू विल फील लाइक एन आउटसाइडर. तुमको एक्सेप्टेंस पाने के लिए यू हैव टू वर्क हार्ड एंड गेट इनटू दैट कल्चर. ऐसा है. तो आप थे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में? Me personally, I'll tell you, ever since I was 14, I've been a nerd. I've been an absolute nerd, and whatever books I've got my hands on, I've read them, and I was never this social. कभी जेलिसी नहीं हुई किस कि बात बच्चे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मेडल्स ला रहे हैं, अवार्ड्स ला रहे हैं? हमें बताया जाता था कि देखो अभी तो वो खुश हैं, बट एग्जाम होके जब तुम अच्छे कॉलेज में होगे, वो नहीं होंगे ना, तब तुम उन्हें कह पाओगे कुछ. ऐसा वो में नैरेटिव बिल्ड किया जाता है. नो, आई एम नॉट सेइंग कि कोई गलत है कोई सही है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ड्यू टू दिस कल्चरल रीजंस. हाँ, तो इन दीज IITs एंड ऑल, फॉरगेट पॉलिटिक्स, इवन नॉर्मल जो आपके जो एजुकेशन से हट के चीज़ें होती हैं, इफ़ यू वांट टू परस्यू लाइक a music channel or something, or you want to go to stand-up comedy or something, typically a lot of resistance, because people will be like, तो यहाँ आया ही इतना मेहनत करके, अब तो मेहनत छोड़ना चाहता है. हाँ, तो your brain becomes too technical to process it that way. I think वो cultural difference आ जाता है. And one more thing is placements, because these corporates who come, India में the corporates जो space है, they are very easy for the government to crack down. प्राइवेट में जैसे मैं कह रहा हूँ, इंडिया का कल्चर ऐसा है,
जैसे यू आर रनिंग अ स्मॉल बिजनेस क्यों, यही साइज का बिजनेस मान लो, यहाँ का लोकल आईपीएस ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर के साथ आपका अगर पंगा है, वो आपको जीने नहीं देगा ढंग से. सही बात है. Because our system is like that, bureaucratic, right? So corporates and all, they typically look for people जो controversial ना हो. Before they hire you, they go through your socials. True. किसने कहीं कुछ comment तो नहीं कर दिया, हाँ ना, किसी ने like तो नहीं कर दिया इसने कुछ controversial चीज़ें जो हमें affect करे. Unless we have strong guidelines like government protections of freedom of speech and all that, we cannot expect citizens in India to be outrightly political, because even the friends I have from IITs and IIMs जिनको political होना भी होता है, वो बेचारे अपनी fake ID निकाल के वहाँ से political होते हैं. हाँ, consequences हैं. So I think that shows more about the state of democracy in India, where something as basic as अपना opinion रखना is seen controversial. जब तक गवर्नमेंट वुड से दैट नो वन कैन फायर यू फॉर योर पॉलिटिकल ओपिनियंस, थिंग्स ऑफ दैट सॉर्ट, अगर हमको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच कॉन्स्टिट्यूशनली वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट इंप्लीमेंटेशन में हम मार खा जाते हैं, जस्ट लाइक एनी अदर फंडामेंटल राइट. जैसे कि आपने बताया कि आपकी जो शुरुआत हुई थी ये सारी चीज़ों की, स्टार्ट हुआ आपका पॉलिटिकल एक्टिविज्म आइल से, दैट स्टार्टेड बैक इन आईआईएम इंदौर. बट एक तो कोई ऐसा पॉइंट होगा ना कि अब बिल्कुल हाँ अब तो कुछ बदलना ही है, उसके बाद से यू थॉट कि आई विल बी एन अम्बेडकराइट और आई विल बी द थिंग विद बीइंग एन अम्बेडकराइट. सो मी पर्सनली, माय बैकग्राउंड, वी कम फ्रॉम एसटी, माय फैमिली एंड ऑल दैट, एंड इस बात का मैं कभी कॉन्शियस हुआ नहीं था, बिकॉज माय डैड वाज पोस्टेड इन ओडिशा, भुवनेश्वर, एंड जो स्कूल में जाता था आई वाज इन केंद्रीय विद्यालय. केंद्रीय विद्यालय में सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के, कोई डिफेंस का होता है, कोई नेवी का होता है, सब कोई आते हैं. हाँ, एंड डिफेंस नेवी ये जो बच्चे आते हैं, एक तो वी वर अ वेरी डाइवर्स क्राउड, यानी उड़ीसा में स्कूल था बट देवर वेरी नंबर ऑफ नॉन ओडिया पीपल देयर ऑल्सो, तो हम मिलके रहते थे. एंड उस टाइम कास्ट का द थिंग वॉज, तुम साउथ से हो तो तुम मद्रासी हो, मद्रासी तो सारे एक ही होते हैं, उनको वो उतना डिफरेंस नहीं पता चला था. हाँ, सारी चीज़ें एक तरह उन्होंने झुंड में कर दी थी. हाँ हाँ, तो एक ही होते हैं. तो दैट नेवर लाइक स्ट्रेट अप मुझे कॉन्शियस नहीं हुआ. बट व्हेन आई वेंट टू कॉलेज, इवन इन माई कॉलेज द थिंग इज, मेरे सरनेम से पता नहीं चलता. इवन इफ यू पुट माई फुल नेम, पीपल कैनॉट फिगर आउट माई कास्ट अनलेस यू आर फ्रॉम अ सर्टन रीजन इन आंध्र प्रदेश, जिसको पता होता है. प्लीज़ एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि आपका पूरा नाम क्या है. My name is Lakshya and my surname is Lake, and the Lake, it comes from a certain tribal community which is in the border between Andhra Pradesh and Odisha. It's the district is called Alluri Sita Ramaraju district, which is in the north of Andhra Pradesh. हाँ, तो वहाँ से हूँ मैं. बट अगेन इट्स अ वेरी नीश कम्युनिटी, ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता है. सो या इन IIM इंदौर नाम से पता नहीं चल रहा था. एंड दूसरा थिंग, पीपल एज्यूम कि अगर तुम SC ST से हो तो तुम काले हो गए. दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल. इफ यू सी टीना दाबी जो थी IAS, शी इज फ्रॉम SC. I mean, मतलब बहुत ज़्यादा उन पे generally you cannot determine someone's caste based on this, the color, हाँ, or the accent of their English. True. Because I'll tell you one more story which is very interesting. We should explain you more about this. So I never was pointed out कि ये बंदा SC ST से है ऐसा कुछ. But I think 3 to 6 months down the line, I was filling up a form for some college का कुछ administrative form था, and उसमें my friends saw कि मैंने वो category में tick मारा था. No, इससे पहले ऑल्सो जितने डिस्कशंस होते थे, पॉलिटिकल डिस्कशंस एंड ऑल, आई वॉज वेरी वोकल इन दोज डिस्कशंस. लोग मेरा बात सुनते भी थे, ओपिनियन लेते भी थे. एंड एवर सिंस दैट पॉइंट वो बात फैल गई यहाँ वहाँ कि ये तो कैटेगरी वाला बंदा है. एंड आई वाज लाइक ओके, व्हाट्स अ थिंग अबाउट, मेरे को इतना नहीं पता था कि इतना बड़ा इशू है. केवी में सब लोग बराबर ही चलते हैं, सब समान. दिस वाज एट IIM, राइट? अच्छा, दिस वाज एट IIM. IIM Indore has a 5-year program, undergrad and postgrad. This was during my first year of undergrad. तो बात फैल गई. And I was hearing weird jokes. Like a girl tells me, oh, that मेरी जो दोस्त है, she is asking for your number because उसकी बच्चों को रिजर्वेशन मिलेगा, something like that. Starting में it felt banal, but then the jokes started getting weirder and weirder. And me, जो discussion में मैं बैठता था, people did not take me as seriously as they used to take me before. I had the same opinions, I had the same knowledge, but people were like, तो कोटा वाला है, इसको क्या ही पता होगा. तब वहीं से मैं आउट हो गया. एंड मेरे को लगा अगर मुझे, इफ दे आर टेकिंग मी आउट, और भी बच्चे होंगे जो SC ST कैटेगरी से हैं. देन आई रियलाइज्ड कि वही कैंपस में जो SC ST कैटेगरी वाले बच्चे हैं वो तो पहले से ही अलग हैं. उनको डे 1 से ही उनको अलग रखते थे. उनका अलग ग्रुप्स होते, इनके अलग ग्रुप्स. सोशल एक्सक्लूजन हो जाता है. हाँ हाँ, इवन IITs IIMs इट इज़ वेरी वेरी अपरेंट, बिकॉज नाउअडेज व्हाट इट इज हैपनिंग, कास्टिज्म है IIMs में. इट इज़ नॉट एक्सप्लिसिट कास्टिज्म कि कोई आपको ऐसे मुंह पे चमार तो नहीं बोलेगा. बट द थिंग इज, सी व्हाट हैपेंस,
अभी IITs IIMs में इफ यू गो, दे आस्क यू आपका जेई रैंक क्या था, ओके, आपका कैट परसेंटाइल क्या था। कैटेगरी रैंक। एग्जैक्टली तो कैटेगरी से दे फिगर आउट कि हाँ एक कम परसेंटाइल में आया तो ये तो होगा SC है ST है, तो वहीं पे अलग। स्टिल प्रेवलेंट। या दैट नहीं, नाम के बाद दैट्स द फर्स्ट थिंग दे आस्क। पहले नाम, सेकंड हमारा परसेंटाइल कितना था। अब जो जनरल कैटेगरी वाले तो खुल के बताएंगे हम तो 97 99। हाँ भी SC ST दे थोड़ा शाई अवे फ्रॉम दैट क्वेश्चन बिकॉज दे नो द कॉन्सिक्वेंस। तो स्टार्टिंग से ही ग्रुप्स इसमें हो गए। एंड द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स ऑब्वियसली दे नो हाउ अ परसेंटाइल इज हाई, दे वेरी कॉन्फिडेंट, दे लाइक हमारा ही जगह है, हम आए हैं, क्लासरूम डिस्कशंस वेरी कॉन्फिडेंट, इंटरव्यूज में वेरी कॉन्फिडेंट। SC ST स्टूडेंट्स दे फील नहीं, वेन एवर दे गेट टू कॉन्फिडेंट एंड ऑल, वो लुक तो आ ही जाता है, तुम तो वही हो लास्ट में। तो वहीं से दैट एक्सक्लूजन स्टार्ट्स। एंड इवन IIMs में आई हैव सीन दिस वन थिंग, प्लेसमेंट्स के टाइम पे जो बच्चे अनप्लेस्ड होते हैं उनको कह दिया जाता है कि देखो फिल दिस फॉर्म दैट आई एम वॉलंटरली ऑप्टिंग आउट, बिकॉज उनको दिखाना पड़ता है 100% प्लेसमेंट्स। ये जो बताते हैं ना IIMs में 100% प्लेसमेंट्स, 30 LP एवरेज, दिस इज ऑल बफूनरी। हाँ, बिकॉज स्टूडेंट्स आर अनप्लेस्ड, उनको बताया जाता है कि तुम प्लेसमेंट से ऑप्ट आउट करो। तो तुम प्लेसमेंट जैसे कि IIMs में कहते हैं, ऐसा मतलब एक जनरल नैरेटिव बना हुआ है कि अगर आप IIMs में चले गए या IITs में चले गए, जिंदगी सेट है आपकी। मतलब दिस इज अ नैरेटिव व्हिच गोज इन। See, I think in India that is largely true because इंडिया में चीज़ें ऐसे हैं ना, कमिंग आउट ऑफ कॉलेज इफ़ यू अप्लाई फॉर जॉब, स्किल्स पे जज नहीं होता तुम्हारा। स्टार्टिंग में क्या देखते हैं, कौन से कॉलेज से आए हो। तो वो तो हेल्प होता है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट द थिंग इज विद इन एन IIM, students who are not placed by XYZ whatever be the reason, they are set to opt out of placements ताकि they can show 100% placements। अब ये जो बच्चे जिनको opt out करने बोला जाता है, they are 90% from reserved categories only। ओके, And when we ask कि SC ST students भी हैं, what are you doing for them, do you even have an SC ST cell, IITs IIMs में नहीं होता। The reason they gave is अगर हम ये करेंगे तो वो कास्ट की फीलिंग बढ़ जाएंगी। हाँ, but the same institutes have a women's cell, and the same institutes also run programs कि जो because वो उनका बताया जाता है कि जब इंटरव्यूज होती हैं जॉब प्लेसमेंट्स के लिए, वुमेन कैंडिडेट समटाइम्स दे डोंट फील दैट कंफर्टेबल और डोंट फील दैट कॉन्फिडेंट, सो फॉर वुमेन दे डू एक्स्ट्रा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड ऑल, जो करनी भी चाहिए, अच्छी बात है, बिकॉज वुमेन का आवर इन सोसाइटी इज वेरी पेट्रियार्कल, तो आई एग्री विद दैट, उनको करना चाहिए। अगर तुम उसको एक्नॉलेज कर रहे हो और वुमेन का सेल रखने के टाइम पे आपको कोई वुमेन मैन का वॉर तो नहीं हो रहा है, तो कास्ट के लिए जब आप कर रहे हो कि SC ST स्टूडेंट्स के लिए आप एक सेल खोल देते हो, उनके इंप्रूवमेंट के लिए यू रन अ प्रोग्राम और वर्कशॉप और समथिंग, उसमें क्यों इतना प्रॉब्लम होता है। हाँ, तो कास्ट का द थिंग इज वी ऑल नो इट एग्जिस्ट्स, बिकॉज आई टेल यू इवन IIMs में जब लोगों के बीच में कॉन्वर्जेशन होती है, like for example people getting into relationships also in IIMs, the conversation is अच्छा your which caste and all, because अगर कास्ट सेम होगा तभी तो आगे जाके कुछ हो पाएगा। हाँ, and this is an IIMs। I've also heard things similar things in Labasna, जो लाल बहादुर शास्त्री। हाँ जो यू पे, वहाँ पे भी यही होता है, कौन सा जात है आपका, और यही लोग जब UPSC क्वालिफाई करते हैं अपने मेंस पेपर में लंबा लंबा ऐसे लिखते हैं कास्टिज्म बुरा क्यों है। हाँ, पर इनका मानसिकता नहीं बदल। हाँ, हिपोक्रेसी। तो कास्ट जो इन दिस sophisticated spaces, IITs, IIMs and all, very real, very much exists, but बात नहीं होता इस पे। It's very implicit under the sheets। क्या इसमें ऐसा भी है कि प्लेसमेंट के टाइम पे भी कुछ मतलब दे थिंक कि इस कास्ट से तो ले लो, समथिंग लाइक दैट? See, typically इंडिया में ना कास्ट मतलब our understanding of caste should not be limited to surnames, our understanding of caste is more holistic। जैसे there are certain markers जिस पे basis पे आप subconsciously judge होते हो, तो जो somewhere somewhat comes from caste lines, I mean it's good somewhat, थोड़ा सा एक्सप्लेन। for example appearance। हाँ, there's a certain way of appearance, a certain your accent। हाँ, say for example, I'll tell you very basic, even in Delhi also, someone like a Sobo, like a South Delhi accent, some like a West Delhi, हमें लोग जज कर लेते हैं बोलने के तरीके से। जनकपुरी से हो गया। हाँ हाँ, और फिर जमुना पारी तो अलग ही ये हो जाता है। हाँ, तो what we associate as aspirational, कि certain kind of English fluency होना चाहिए, accent होना चाहिए, certain kind of appearance is seen, ये these are all again very upper caste dominant narratives होते हैं। These are not explicitly casteist, हाँ, but then these Somewhat these narratives stem from a certain this kind of an approach। आंसर जैसे कि कास्ट की ही बात पे अगर हम लोग कंटिन्यू करें, एक बहुत ज़्यादा डिबेट चलती है, सिंस आई एम ऑल्सो इनटू डिबेट्स एंड ऑल। सो एक डिबेट बहुत चलती है
दैट या रिजर्वेशन होना चाहिए या फिर मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब जो जनरल कैटेगरी का एक जनरल कैटेगरी वाले एक बात बोलते हैं कि एक इंसान जनरल कैटेगरी में 24 नंबर ला रहा है, सॉरी 94 नंबर ला रहा है, वो पास नहीं हो पा रहा है। वहीं पे जो एक SC ST या OBC कम्युनिटी से है वो थोड़े कम नंबर ला रहा है, वो वहीं पे 60 65 55 नंबर ला रहा है और उसका हो जा रहा है। तो इसके लिए एक ऐसी बात बोली जाती है कि उनका जो सोशल एक्सक्लूजन हुआ है शुरू से, उनको उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। बट वहीं पे जैसे हमने आपने अभी नाम भी लिया था, टीना डाबी IAS हैं, उनके फादर A ग्रेड सर्विस ऑफिसर थे, उनकी मदर A ग्रेड सर्विस ऑफिसर थी। इसके बाद भी स्टिल शी गॉट दैट रिजर्वेशन। सो व्हाट डू यू प्रेफर, रिजर्वेशन और मेरिटोक्रेसी? See, I'll tell you three things, okay? First, ये जो रिजर्वेशन का करते हैं, if you look at jobs, जो employment sector है, only like 8% jobs in India are in government. बाकी तो प्राइवेट सेक्टर में, और उससे भी ज़्यादा जॉब्स तो इनफॉर्मल सेक्टर में। खैर फॉर्मल सेक्टर को हम लेते हैं, आई थिंक अराउंड 8% जॉब्स आर इन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सेक्टर। हाँ, एंड उसमें इफ यू सी द रिजर्वेशन फॉर SC ST, इट इज कमिंग आउट व्हाट 2 to 3% प्रॉब्ली। हाँ, सो out of the entire job market, you'll see 2 to 3% jobs is where reservation actually exists. Though largely, if you see, SC ST are underrepresented only in the whole entire job sector. So 2% reservation, if you in the large scheme of things, is a small thing. Second, even if you talk of education, large number of colleges are private sector, ये है, उसमें reservation is zero. हाँ, only in government and government university affiliated जो होते हैं, उन्हीं में reservation होता है। एंड इफ यू सी इन अ लॉट ऑफ कॉलेजेस आल्सो, मास्टर्स प्रोग्राम्स एंड PhD प्रोग्राम्स, SC ST सीट्स इवन व्हेन कट ऑफ इज एज लो एज 0, वो खाली जाते हैं। तो ये जैसे एक मेरे ही एक जानने वाले थे, उनके मतलब मेरे साथ का एक लड़का था, उनका क्या हुआ, उस लड़के के आए थे, ही गॉट 94 परसेंटाइल इन सम एग्जाम, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट उसकी सीट नहीं मिली। और सेम एग्जाम में किसी उसी की एरिया के आसपास उतने ही जिसे कहते हैं संपन्न परिवार से आए हुए लड़के के शायद 62 मार्क्स थे एंड ही गॉट सेलेक्टेड, ही गॉट क्वालिफाइड फॉर दैट एग्जाम। तो उसे लगा कि अगर सही में कोई चीज़ होती, किसी सही इंसान को मिला होता, तो इट वाज लाइक कि हाँ ठीक है, रिजर्वेशन। फॉर एग्जांपल PhD programs in a lot of colleges, SC ST cut off basically it goes as low as 0. Sometimes in some जो sections होते हैं माइनस तक भी जाता है, yet seats go vacant. हाँ, तो आपको क्या पता था, अगर 0 कट ऑफ के साथ भी लोग नहीं आ रहे हैं, तो हाँ, now let us get to why is it like that. इंडिया में the education system is fundamentally two-tiered. The reason being, प्राइवेट कॉलेजेस जो स्कूल्स होती हैं, प्राइवेट स्कूल्स, यू गेट बेटर क्वालिटी एजुकेशन देन गवर्नमेंट। एंड गवर्नमेंट स्कूल्स का आप अगर देखोगे द सिचुएशन, द काइंड ऑफ ये, दे आर लीग्स बिलो व्हाट प्राइवेट ऑफर्स। एंड इवन SC ST कम्युनिटीज ऑल्सो, अगर उनका जब इनकम बढ़ जाता है, द फर्स्ट थिंग दे ट्राई टू डू इज टू गेट देयर किड इनटू द प्राइवेट स्कूल। सो व्हेन यू हैव a system where private school से बच्चे निकल रहे हैं, government school से बच्चे निकल रहे हैं, the government school one would always be at a disadvantage. I don't think there is a private school in India which is worse than a government school. ऐसा exist ही नहीं कर सकता होगा। हाँ, तो fundamentally there is a two-tiered system. And even in the private schools, if you see, if you look at say an IIT or an IIM, जो SC ST के बच्चे आते हैं, the kind of private schools they come from, they're not that high end वाले, उनका बहुत ही ऐसे कम लेवल वाले इसमें से आ रहे हैं। हाँ, and if you see the ones coming from general category, they get access to very good schools, they go to coaching centers, very good coaching centers, कोटा से आए हुए हैं, they have that experience of already, you know, एक थोड़ा groomed होते हुए आना। and starting से ही, even though they get entry, एक को reservation से मिलता है, दूसरा अपने percentage से आता है, what you find is that the one general category candidate, he is already 5 to 10 steps ahead. इसको कैचअप करने के लिए 2-3 साल लग जाएंगे। तो स्टार्टिंग से ही दैट डिस्पैरिटी इज देयर। नो, when this comes back to history, Dr. Ambedkar, when he got to know कि इसको exclusion है, his solution was give us a separate electorate. हमको अपना बजट दे दो, हम अपने दलितों के लिए अलग स्कूल रख लेंगे, अलग ये रख लेंगे, हम अपना ही कर लेंगे। हाँ, गांधी जी इज लाइक नहीं, तुम देश तोड़ना चाहते हो, हाँ तुमको रिजर्वेशन दे दो। वी डिड नॉट वांट रिजर्वेशन, हम अपना ही दे दे। यू डोंट लाइक गांधी जी? फंडामेंटली आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, ऑब्वियसली। कास्ट सिस्टम जो था, देखो गांधी का क्या कहना था कि ठीक है, ब्राह्मण अपने जगह सही है, वो पूजा पाठ कर रहे हैं, क्षत्रिय अपने जगह सही है, वो अपना रक्षा कर रहे हैं, वैश्य अपना जगह सही है, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, सारे जातियों का अपना मान सम्मान होता है।
अगर जो दलित है, कोई फांसी का या कोई चमार कम्युनिटी से हैं जो छोटे मोटे काम करे, हमको टॉयलेट क्लीनिंग में नहीं चाहिए सम्मान भाई, हमें इससे आगे बढ़ना है। सही बात। हाँ, बिकॉज आवर आइडेंटिटी इज लिंक्ड टू दैट ये, वी So डोंट you वांट टू don't बी एसोसिएटेड विद दैट agree आइडेंटिटी। with गांधी जी? फंडामेंटल दिस इज डॉक्टर अम्बेडकर सेड, वी डोंट नीड कि कास्ट सिस्टम सबको रेस्पेक्ट मिले, हमने कास्ट सिस्टम को ही हटा दो। बिकॉज जब तक हमारा जो आइडेंटिटी है उसी सरनेम से जुड़ा रहेगा, उसी कोई चमार है कोई ये है इससे जुड़ा रहेगा, फिर सोसाइटी हमें उसी नज़र से देखेगा। अब जस्ट बिकॉज गांधी कह लेंगे कि नहीं नहीं इनको रेस्पेक्ट से देखो, इट्स नॉट लाइक कुछ बदलने वाला है। वी वांट टू गेट बियॉन्ड दीज थिंग्स, वी वांट टू इरेज द होल दिस सरनेम सिस्टम जहाँ पे हमारा आइडेंटिटी को उस नज़र से देखा जा रहा है। तो जैसे कि कास्ट से कुछ लोग कास्ट से आगे बढ़ के रिलीजन पे आते हैं, वही बात है कि जाति से बड़े तो धर्म पे आ गए। हाँ, तो द थिंग इज नाउ हियर व्हेन डॉक्टर अंबेडकर वांटेड टू सेपरेट ये कि हम अपना अपना देखो, द थिंग इज डॉक्टर अंबेडकर इवन अंडरस्टूड कि भी रिजर्वेशन वाली बात होगी। हाँ, तो ऑब्वियसली हमारे लोग उतने आगे नहीं है, ऐसा सोसाइटी अपना कम्पिटिटिव लेवल उतना नहीं है, ऑब्वियसली कट ऑफ्स एंड ऑल विल बी डिफरेंट, वी विल फेस दैट काइंड ऑफ एक्सक्लूजन, बट रिजर्वेशन बिकेम अ कॉम्प्रोमाइज। नाउ हाउ डू वी एक्चुअली एड्रेस दिस रिजर्वेशन, हाउ डू वी मेक इट कि जनरल कट ऑफ और SC/ST कट ऑफ में फर्क ना हो? The thing which I give you an example is मंडल कमीशन एंड OBC। मंडल कमीशन जब आया था, OBC रिजर्वेशन जब स्टार्ट हुआ था ना, OBC का सिचुएशन क्या है, वो ना SC/ST जितने ज़्यादा एक्सक्लूडेड थे, ना ही वो जनरल कैटेगरी सवर्ण जितने ये थे, दे वर समवेयर इन बिटवीन। तो जब OBC रिजर्वेशन आया आफ्टर मंडल कमीशन, यू फाइंड द OBC कट ऑफ वो जनरल कट ऑफ जितना ऊपर नहीं था, या SC/ST कट ऑफ जितना नीचे नहीं था, वो कहीं बीच में था। बट ओवर द ईयर्स what you find is that the gap between these two cutoffs is getting lesser and lesser and lesser and lesser. OBC and general cutoff दोनों पास आते आते गए, and now in a lot of exams OBC cutoff and general cutoff more or less the same. हाँ, that is why OBC लोगों को ज़्यादा hate भी नहीं मिलता अपने reservation के लिए। हाँ, now that what it shows is that इनका भी जो situation है, it has improved, that they have reached to that level. तो कट ऑफ जो होता है, इट इज ऑल्सो सोशल इंडिकेटर कि वो जो कम्युनिटी है वो किस लेवल ऑफ इस तक पहुंचा है। देन इवन SC/ST कट ऑफ, यू सी SC रिजर्वेशन तो 70 ईयर्स से है, एंड जो कट ऑफ का डिफरेंस था बिटवीन जनरल एंड SC/ST वाज वेरी ह्यूज बैक देन, बट नाउ यू आर सीइंग अ टेंडेंसी टुवर्ड्स दीज टू थिंग्स गेटिंग टू द सेम। बट अगेन फंडामेंटल थिंग इज स्कूलिंग ये सब का फिक्स नहीं करोगे ना, वो डिफरेंस तो रहेगा ही। अभी जैसे आपने एजुकेशन की एंड व्हाट एजुकेशन, इफ यू आस्क मी व्हाट इज द सॉल्यूशन, कब हम ऐसे कर सकते हैं कि कट ऑफ मतलब देने का जरूरत ही नहीं पड़े। चाइना जो है, चाइना हैज वन स्कूलिंग सिस्टम फॉर ऑल, अमीर का बच्चा, गरीब का बच्चा, कहाँ का बच्चा, सब एक ही स्कूल में जाएंगे। इंडिया में ऐसे करो ना ऐसे इंडिया में सब अगर एक ही स्कूल में जाएंगे, सबको अगर एक ही एजुकेशन मिल रहा है, सबके अगर स्टार्टिंग पॉइंट सिमिलर ही है, देन यू वोंट नीड टू गिव रिजर्वेशन फॉर वन एंड नॉट गिव रिजर्वेशन टू द अदर, दे विल ऑल मोर और लेस कम टू द सेम प्लेइंग फील्ड। अब अगर हम लोग कास्ट से बढ़े, जैसे कि धर्म की बात होती है, जैसे कि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की क्लियरिटी नहीं है कि अगर वो माइनॉरिटी बोल रहे हैं तो माइनॉरिटी से मतलब सिर्फ मुस्लिम से नहीं होता, देयर आर क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, सिख्स, एवरीवन कम्स अंडर इंडिया में ऐसे टेक्निकली द वे कॉन्स्टिट्यूशनली वी डिफाइन सिख, बुद्धिस्ट, जैन, ये सब हिंदू में ही आते हैं। हाँ, बट दे आर आल्सो इनटू द माइनॉरिटी। मैंने ये चीज़ पढ़ी थी संविधान में। और इट्स डिपेंड्स ऑन हाउ यू कैटेगराइज। फॉर एग्जांपल यू हैव द हिंदू कोड बिल, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, इसमें तो यू गेट द बुद्धिस्ट्स एंड द सिख्स एंड एवरीवन, उसमें इंक्लूजन है। बट अगर व्हेन वी टॉक अबाउट माइनॉरिटीज, सो उसमें ये लोग भी, जैसे पारसीज हैं, वो भी आ जाते हैं। पारसीज आर नॉट, दे डोंट कम अंडर हिंदू, नहीं, दे कम अंडर माइनॉरिटी। सो मतलब एक परसेप्शन बना है, जर्नल परसेप्शन की बात करें कि अल्पसंख्यक मतलब तो मुसलमान है। सो इस पे एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की भी बहुत ज़्यादा होती है। सो व्हाट डू यू थिंक, इट्स जस्ट फॉर द मुस्लिम्स और जस्ट फॉर अ सिंगल कम्युनिटी, और इट्स फॉर एवरीवन? सो इन इंडिया इफ यू लुक एट से फारसी कम्युनिटी, फारसीज आर इन स्मॉल बेल्ट। जैसे बॉम्बे में जाओगे, वो हर लोकेलिटी में नहीं मिलेंगे, बहुत ही कम लोकेलिटीज में उनका अपना है, स्मॉल चंक ऑफ small communities of people, and they're economically also a bit well off, then थोड़े sophisticated होते हैं, वो अपना whatever they take care, वो इतने visible नहीं होते। हाँ, compared to Muslims are huge in number, 14%, more Muslims in India than in Pakistan, more Muslims in India than in Bangladesh. We are 14% is not a small number, and Muslims are visible minorities. उनका the dressing is different, उनका language is in many ways different, and they can be identified बहुत ही ये तरीके में। And considering our history, you will have to also remember that the history of India has been also a history of partition. This partition in many ways was because a certain Muslim community के लोग, a large leader there said कि नहीं, हम इनके साथ रह नहीं पाएंगे। तो
the Muslims who were, remained in India, when our constitution हुआ था and we started off as a country, leaders Gandhi, Nehru and Dr. Ambedkar included, we said ये अगर है इंडिया में, ये यहीं पे रह रहे हैं, they did not choose to go to there, they want to be a part of here, we should make sure they feel included. That is why, for example, उस ज़माने में women did not have right to inherit property, women did not have alimony का right, women did not have right to divorce and remarry, Hindu women did not have and Muslim women का भी बीच में ही situation था. It was Dr. Ambedkar who said, let us give all women this right. उसी टाइम यूनिफॉर्म सिविल कोड का डॉक्टर अम्बेडकर had put it. Yeah. But then the situation was so critical. Nehru and all understood. देखो भाई, अब भी पार्टीशन हुआ है, तुमको करना है ये सब राइट्स फॉर वुमेन. लेट अस स्टार्ट विद आवर कम्युनिटी फर्स्ट. पहले इनको कंफर्टेबल करते हैं, बिकॉज आवर ओन उस टाइम कम्युनिटी वाज नॉट कंफर्टेबल. हिंदू कोड बिल के टाइम में जो आरएसएस और ये लोग सब चढ़ गए थे, डॉक्टर अम्बेडकर के जब वो जिंदा थे उनका शव यात्रा निकाला था. हाँ, तो वो सब चीजें हुई थी. हाँ, पुतले जले थे. But Dr. Ambedkar was उस time also clear that if we are doing it for women, let's do it for all women. मेरे को क्या है, हिंदू मुस्लिम हो, मुस्लिम women हो, they are all women ही तो है, rights तो चाहिए उनको. But situation was critical उस time पे. We did not want to antagonize the Muslims again, and we had to make sure they were on board with us. That is why आप देखोगे in our legal code also, in our constitutional year also, Muslims in particular, उनके लिए we have made certain arrangements and certain leeways, and we have given them priority also in many instances, because we wanted to make sure कि the Indian Muslim never feels excluded, because we know in history what happens when they feel excluded. We have lost a chunk of our own country to partition, right? So keeping that history in mind, our जो legal system में these preferential treatment अगर आप कहना भी चाहते हो, that made sense in that political history we have. Whereas Farsis हो गए या Sikhs हो गए या इनका हो गए, they are again the way we look at them and they looked at us, it's not that antagonistic. हाँ, you'll never find a Hindu Buddhist like a riot or something, or a Farsi Hindu riot or something. उनका they have different relations with different visible. Yeah. So see, the thing is ना, लोग क्या सोचते हैं, secularism मतलब we treat all religions the same way, therefore policy should be the same, but policy should also be context dependent of that specific country. तो वही context के हिसाब से उसी पे इंडियन सेकुलरिज्म और वेस्टर्न सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है. Yeah. See, the thing is, जब secularism जो start हुआ था, जो French secularism है ना, फ्रेंच स्टाइल सेक्युलरिज्म is स्टेट एथियज्म. वो कोई रिलीजन को मानते नहीं है. कुछ वर्ड नहीं. या वैसे इंडियन सेक्युलरिज्म आप देखोगे, इंडिया में व्हेन पार्लियामेंट में वन इज इलेक्टेड, वो जब शपथ लेते हैं, व्हेन दे टेक द ओथ, दे टेक इट ऑन द रिलीजियस बुक. हाँ, तो वी हैव इंक्लूडेड अ रिलीजन एज पार्ट ऑफ दिस, एंड आवर रिलीजन यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर अम्बेडकर के टाइम पे बहुत दलितों को मंदिरों में जाने का नहीं था परमिशन, एंड जब उन्होंने बोला कि हमको भी जाना है, हम भी इंसान हैं, तो उनका लॉजिक था, मंदिर तो रिलीजियस जगह है, आपका जो लॉ है वो तो सेक्युलर इस चीज़ों के लिए, वाई शुड वी हैव सेक्युलर लॉजिक इन अ रिलीजियस प्लेस. बट डॉक्टर अम्बेडकर लाइक ऐसे तो फिर तो एक्सक्लूजन ही है ना. तो वी हैड टू मेक लॉज इन अ सिस्टम वेयर इट कुड ऑल्सो इंटरफियर विद रिलीजियस अफेयर्स इफ दोज रिलीजियस अफेयर्स वर एक्सक्लूजनरी. Even we have seen the same in terms of sati प्रथा जो होता था, वो तो religious practice था. They could have said कि if I am agreeing, the woman is agreeing to be burned, हम तो religious लोग हैं, हम कर सकते हैं. But no, our secularism in the book, in the theory, should not interfere with religious affairs. But in India, it is necessary because religion and society and culture are all together. So you cannot have a secularism जो religion के साथ interfere करे ना, because it is necessary in the context of India. हाँ. तो secularism का जो western one-sided definition, that won't fit. You cannot just be like कि आप अपना हाथ खींच लो. हाँ, करना we have to make it in the context of India. जैसे अभी आपने महिलाओं की बात करी, इस टाइम पे एक और मतलब जिसे कहते हैं ना, भारत थोड़ा जंगवादी देश भी कह जाते हैं, कुछ आपस में ही कुछ ना कुछ होता है. जंगवादी. हाँ, जंगवादी. हाँ, तो I would say we are very peaceful in terms of historically. In terms of historical but differences, I would not say जंगवादी, I'll say differences, ideological differences. So अभी एक चीज चली हुई है, फेमिनिज्म वर्सेस सूडो फेमिनिज्म. जैसे कि फेमिनिज्म की बात थी कि आप उठाओ, अपलिफ्टमेंट करो, ये सूडो फेमिनिज्म पे आपका क्या विचार है? इंडिया में if you see something as worse as rape, every 6 minutes a rape happens. हाँ, you cannot deny. इवन एज सिंपल एज अपने ही फ्रेंड सर्कल में पूछो, जितने भी गर्ल्स हैं जो मेट्रो में चलाती हैं, उनके साथ मंथली एक इंसिडेंट होता होगा या तो वीकली होता होगा. कोई बुरी नज़र से देखना, कोई ऐसे बुरी नज़र से टच करना, वेरी वेरी कॉमन. एंड वी एज मैन, वी नेवर हैव टू गो थ्रू दैट. गॉड फॉरबिड अब ऐसा दिन ना आए कि हमारे साथ भी हमें लगे कि कोई हमें छू रहा है उस बुरी नज़र से और समथिंग.
बट इनके साथ वेरी वेरी कॉमन इन दैट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ये मुद्दों को यू शुड नीड समवन इज वेरी वोकल ऑन दिस टॉपिक्स. हाँ, इन आई थिंक दिस जो वुमेन्स का जो मुद्दा है ये आइडियोलॉजी का बियॉन्ड है. हाँ हाँ, राइट लेफ्ट सेंटर, रेप तो अगर गलत सबको है तो सब गलत गलत है. है, हाँ. ये दिस इज फंडामेंटल प्रॉब्लम. एंड द सेम थिंग इफ यू सी, आई विल गिव यू वेरी क्रूड एग्जांपल. हम मानते हैं कि वुमेन्स कंडीशन इज वर्स इन पाकिस्तान एंड इन बांग्लादेश, ऐसा हमारा अंडरस्टैंडिंग है. यू वुडंट बिलीव वुमेन्स का वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इट इज हायर इन पाकिस्तान, हायर इन बांग्लादेश. और हम उड़ते हैं कि हमने वुमेन को कुछ ऐसा कुछ ये कर दिया. जहाँ पे माताएं की तरह ट्रीट करते हैं वहाँ पे वर्क यार पार्टिसिपेशन. आई डोंट थिंक वुमेन वांट टू बी ट्रीटेड एज माता. आई थिंक वुमेन वांट टू बी ट्रीटेड एज इंसान. पहले इंसान को जैसे ट्रीट करो फिर माताएं बना लेना. नहीं मतलब एक कंसेप्ट है ना कि जो महिलाएं हैं माता होती हैं, तो जहाँ पे जिस कंट्री में इंडिया में हर चीज माता होती है, इंडिया में हर चीज देवता होती है भाई. वो नदी भी देवता है, वो बच्चा भी देवता होता है, सब कुछ. मतलब ऐसा माना जाता है. हाँ, मानते हैं बट एक्शन में कुछ नहीं दिखाते हैं. वी कैन सी यमुना हाउ इट इज ट्रीटेड, यमुना माता. हाँ, कहने से कुछ नहीं होता वैसे. खैर, द थिंग इज ऐसे कॉन्टेक्स्ट, सोशल कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई महिलाएं आके अपने इश्यूज के बारे में बोल रही हैं, फेमिनिस्ट बोल रही हैं, इश्यूज बोल रही हैं, एंड मान भी लेते हैं कि 70% वो ठीक है, 30% वो एक्सट्रीम भी हैं, वी मेन आर इन नो पोजीशन टू पॉइंट दैट आउट. हम क्या, देखो देखो द थिंग इज ना, 99% ऑफ द प्रॉब्लम्स वुमेन फेस वो हमारी जेंडर से आती है. हाँ, रात में वो जब अकेले जा रही होती है, जो लोग उसे देखते हैं वो हमारे जेंडर वाले ही होते हैं. हाँ, कुछ लोगों ने ना जैसे कॉन्सेप्ट, जैसे कि मैंने एक इंस्टा स्टोरी देख रहा था, तो देयर वाज अ पर्सन, उसने क्या लिखा कि आई एम अ मैन हेटर. हाँ, शी कोटेड दिस लाइन एंड मतलब वो एक लिंक्डइन था, शायद सोशल मीडिया का लिंक्डइन था. मुझे हाँ याद आया, लिंक्डइन पे किसी ने पोस्ट डाली, तो किसी ने लिखा था कि देखो जो आदमी होते हैं बहुत मेहनत करते हैं, घर चलाने के लिए कुछ भी करते हैं. तो आई वाज जस्ट रीडिंग, गोइंग थ्रू द कमेंट्स, एंड किसी महिला ने लिख दिया आई एम अ मैन हेटर. और आई तो प्रेफर कि यहाँ इस धरती पे, इस देश में मर्द समाज होना ही नहीं चाहिए. दिस वाज हर कोटेड लाइन. सोचो लिंक्डइन जैसा एक बहुत ही कॉर्पोरेट और फॉर्मल इसमें, लाइक शी कोटेड दिस लाइन. see the thing is ना, the way we, I would use the word society has failed women in many ways. True. हाँ, I जब agree. वो considering what they face, and तुम कह सकते हो उनका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत आवर्स ऑफ द लाइफ उनका रहता है, बिकॉज जब भी बाहर जा रही है, यू नेवर नो व्हाट कुड गो रॉन्ग विद देम. हाँ, उसने जब जब हमने मर्दों ने उन्हें फेल किया हुआ है सिस्टमैटिकली, उनमें से अगर 1%, 2% लोग थोड़े एक्सट्रीम स्टेटमेंट, देखो द थिंग इज ना, इफ दैट वुमन सेज ओ आई हेट मेन, इट्स नॉट लाइक वो कल जाके शी विल स्टार्ट मर्डरिंग मेन और डू मास शूटिंग और समथिंग, राइट? बट इफ अ गाय, That's a fear that she yeah, has see, got. men who hate women commit murders and rapes and worse things. Other way around नहीं होता है. How many man haters जो फेमिनिस्ट हैं वो लोगों ने जाके लड़कों को मार दिया या कोई रेप कर दिया, ऐसा नहीं होता. तो कंटेक्स्ट में अगर देखोगे, द वे वी हैव फील्ड देम, उनमें से अगर 1-2% एक्सट्रीम लोग अगर ऐसे बयान देते भी हैं, ऑब्वियसली आई डू नॉट सपोर्ट व्हाट शी सेड, गोज विदाउट सेइंग. आई डोंट थिंक एनीवन, see, these things come not from a place of rationality but emotional this Frustration kind of thing. exactly हाँ. तो वही, I mean, as much as I would not support that, I don't think वो मेजर मुद्दा है. द फोकस शुड बी ऑन दिस रेप्स हैपनिंग एवरी 6 मिनट एंड नॉट दिस स्मॉल 1%. आजकल इंटरनेट में क्या होता है ना, दोनों इसको भी ला देते हैं, उसको भी ला देते हैं, बोलते हैं ये भी गलत है, ये भी गलत है, दोनों बराबर है. दोनों बराबर नहीं है. माई प्रॉब्लम इज विद द मैग्नीट्यूड. आप देखो ना, मैग्नीट्यूड व्हाट मेन डू टू वुमेन कंपेयर टू व्हाट वी, इवन एलिमोनी का जो लोग कहते हैं कि एलिमोनी बहुत बुरा है, देखो सम लीगल केसेस कुछ भी ऐसा हुआ है. देखो, जब जैसे मैंने बताया था, कंटेक्स्ट अकॉर्डिंग हमारे लीगल सिस्टम्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसी कंटेक्स्ट हिसाब से जब नेहरू एंड डॉक्टर अम्बेडकर टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इन द लीगल सिस्टम बना था, बहुत सिचुएशंस में देयर इज प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टुवर्ड्स वुमेन, स्पेशली एलिमनी एंड डिवोर्स. क्यों? बिकॉज सोसाइटी में वुमेन का पोजीशन उतना स्ट्रांग नहीं था, आज भी नहीं है. कंसिडरिंग द सोशल कॉन्टेक्स्ट, उनके देखो लीगल प्रेफरेंस अगर किसी को मिलना है, किसको मिलना है? जो वीकर सेक्शन है उसी को मिलना है. तो वुमेन ऑब्वियसली वीकर सेक्शन है, तो देयर कुड बी सम 5-10% केसेस या उससे ज्यादा भी. जैसे कि मैं एक केस ही देख रहा था. सो एक इंसान था, मतलब दे फाइल्ड अ डिवोर्स, द कपल फाइल्ड अ डिवोर्स, और ये हुआ कि जो आदमी था 30-35 हज़ार रुपये कमाता था. सो विदाउट सपोर्टिंग टू एनीथिंग, आई जस्ट सॉ दिस वीडियो. वंस अगेन आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीवन. तो दैट पर्सन जस्ट कोटेड कि अगर मैं 35,000 रुपये कमाता हूँ और जो उसकी वाइफ है, शी डिमांडेड फॉर 2.5 CR alimony.
देखो लीगली यू कैन कोर्ट में आप डिमांड कुछ भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन द जज, वो देते नहीं देते Once again, I am not एंड द supporting थिंग इज इंडिया में compared to the world, the divorce rates in India are the lowest. Lowest. It's not because यहाँ की marriages बहुत ही लवी डवी है, नहीं नहीं. Portugal is highest. हाँ, the problem why divorce rate is the lowest in India because divorce का social stigma है बहुत. Divorce करोगे तो घर वाले बोलेंगे अरे क्या तुमने घर तोड़ दिया, societal stigma है, divorce ये तो कोई शादी नहीं करेगा, इतने सारे वो social impositions है. Divorce करने के लिए there are so many things stopping you. हाँ, तो obviously इतना वही मैं जैसा पोर्चुगल का and that 1% लोग जो डिवोर्स करते हैं, if you look at the statistics, only 1/4 of those marriages में alimony का बात होता है. हाँ, तो we are looking at a in terms of magnitude what women go through in terms of violence, sexual violence and other things. This is a very issue. But this issue is being magnified so much. And जो जितने MRAs वाले हैं वो इसी को लेके बैठ जाते हैं. And देखो मेरे को पता है worrying क्या लगता है, बहुत यंग लड़के हमारे एज के, देखो when you are 17-18 growing up, you try to talk to women, you get into relationships, whatever you try. 17-18 में भाई तुम कच्चे होते हो, नहीं होते हैं चीज़ें. हाँ, you learn थ्रू एक्सपीरियंस, बट तुम वो एक्सपीरियंस को तुम अगर देखो 17-18 समथिंग डजंट वर्क आउट विद अ गर्ल, तुम उसी एक्सपीरियंस के साथ ये पॉलिटिकल क्लाइमेट में आ जाओगे कि लोग कह रहे हैं एलिमोनी से ऐसा हो रहा है, लड़कियां ऐसी हो रही है, तुम फिर वुमेन हेटर ऐसे बन जाओगे ना, तुमको अपने लाइफ में यू वुड नेवर बी हैप्पी विद अ वुमेन, तुम गिव अप कर दोगे ये सब पे. जैसे मैं पोर्चुगल का बात देख रहा था, तो पोर्चुगल में क्या था कि एज डोंट रिमेंबर दैट एग्जैक्ट फैक्ट, आई गेस इट वाज मोर देन 90 और समवॉट अराउंड 90, मतलब वहाँ पे इतने % डाइवोर्स रेट्स हैं. फिर मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा, तो पीपल वर हैप्पी, उनके लिए डाइवोर्स एक स्टिग्मा नहीं, बट रेदर इट्स अ थिंग, यहाँ नहीं बन रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, लेट्स सेपरेट. इंडिया में आई टेल यू ऑनेस्टली, जितने मैरिजेस होते हैं, इट इज इन द वंस आई हैव सीन इन कॉर्पोरेट, नाम के लिए मैरिज है, बट यू नो हाउ मच लॉयल दे आर और व्हाट इज हैपनिंग. आई एम नॉट ब्लेमिंग वन जेंडर, बोथ जेंडर्स डू दिस, बट इंडिया में मैरिजेस आर लार्जली डिसफंक्शनल एंड इवन द चीटिंग रेट्स आर आल्सो एपरेंट. बहुत ज़्यादा है. तो उससे बेटर था कि डिवोर्स लेके तुमको जो पसंद उसके साथ ही रह लो ना. सही बात है. तो टेक्निकली वही चीज़ कर रहे हो. अच्छा, हाउ वाज योर HDFC लाइफ व्हेन यू वर? आई वाज एट कोटक. अच्छा, यू वर इन कोटक महिंद्रा. आई एम सो सॉरी. हाउ वाज योर कोटक लाइफ, लाइक कैसा था कॉर्पोरेट सेक्टर, हाउ वाज दैट? See, I would say Kotak Mahindra Bank. Again, I don't like praising billionaires or something, but जो Uday Kotak, the founder, he comes from very humble beginnings, and उनका फंडा बहुत क्लियर है कि मेरे को क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, मुझे बहुत ही गुड क्वालिटी ऑफ बैंकिंग इंडिया में ना ट्रस्ट वाला बैंकिंग देना है. एंड आई थिंक सर्टन गुज्जू बनिया कम्युनिटीज़ में वो होता है. हाँ, इन अ वे इट्स द थिंक अबाउट इट, जो वैश्य बनिया कम्युनिटीज़ हैं वो सेंचुरीज़ के लिए सिर्फ बिजनेस ही करते हुए आए हैं, तो उनका कल्चर में वो इंग्रेन्ड एक ये हो गया. एंड आई थिंक कोटक, उनकी जो फंडामेंटल्स दे हैव कम अप विद, जैसे फॉर एग्जांपल ICICI है, ICICI स्टार्टेड ऑफ एज गिविंग रियल एस्टेट लोन्स, फिर वो बैंक बन गया. हाँ, SBI तो गवर्नमेंट का ही है, बट कोटक इज अ वेरी न्यू बैंक एंड दे उनका विजन इज अ बिट. व्हाट वाज योर पोस्ट देयर? आई वाज यू हैव प्राइवेट बैंकिंग विच इज़ बेसिकली, देखो नॉर्मल हम जैसे लोग हैं, हम थोड़ा बैंक में जाके लिखवाते हैं, FD बनवाते हैं. वो जो बहुत पैसे वाले लोग नहीं होते हैं, जो क्रिकेटर होते हैं, सेलिब्रिटी एक्टर होते हैं, ये बैंक नहीं जाते हैं. बैंक उनके पास आता है, उनके घर आके बोलते हैं मैडम आपकी तो 4 करोड़ यहाँ पे, इसमें से आप इतना यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो, यहाँ पे अपना FD डाल दो और आप साइन कर लो, हम कर लेंगे. तो आई वॉज दैट गाय जो बैंक के बिहाफ पे ये सब सेलिब्रिटीज लोगों से मिलने जाता था. किसके पास गए थे? I cannot reveal names for confidentiality reasons, but I've been to, what I've observed there is like, see, when I started off, आपको सबसे बड़ा अकाउंट तो देंगे नहीं, सलमान खान तो आपको नहीं मिलेगा, उसके पास इतने करोड़ है, but I was working with actresses, because इंडिया में actors and actresses का पे डिस्पैरिटी बहुत है. हाँ, एक्टर जितना बनाता है, the male, he makes 5 times what an actress makes. So I was dealing with the actresses because मेरा portfolio में that economic ये वाले थे. And in terms of Kotak, what I've seen is that large chunk of Baniyas, Marwadis, lot of Gujjus, and जो बचे कुछ सिंधी मिलेंगे, पंजाबी मिलेंगे. That is like the demographic composition. So you left your job? Yeah, I left it in 2023 only, and then I was working with a political party. अच्छा, which you told me. So basically, अगर हम आपके इन्फ्लुएंसर वाली पार्ट पे हैं, so एक इन्फ्लुएंसर की लाइफ बहुत ही फैसिनेटिंग लगती है व्हेन यू सी एज अ व्यूअर. सो एक चीज़ कभी घर वालों ने नहीं बोला कि मत करो ये सब, कुछ नहीं रखा, समथिंग लाइक दैट? सी, माई पेरेंट्स, उनको उतना समझा नहीं कि इन्फ्लुएंसिंग सब होता क्या है. दे आर लाइक भाई घर कैसे चलाओगे, दैट वाज अ बेसिक ये. फिर उनको पता चला कि नहीं इसमें भी रेवेन्यू स्ट्रीम्स होती हैं. देन दे वर लाइक ओके, बट लाइक बी केयरफुल बिकॉज आई एम स्टिल यंग.
and I'm not married or something that I have ऐसा वाला सीन responsibilities. हुआ था क्या कि पापा थोड़ा कम कमाऊंगा लेकिन खुश रह लूंगा, समथिंग लाइक दैट? See, the thing is now, post IIM, corporate IIM placements, it earns you a lot, but the best part there is stability. Influencer life में some months you make a lot of money, some months you don't make money at all. तो वो fluctuate होता है. तो certainty थोड़ा वाला factor होता है. But the thing is, the kind of influencing I'm doing, जैसे मैं अगर कोई फैशन ब्लॉगर होता या मैं कोई जिम कंटेंट वाला होता या कुछ और होता, थिंग्स वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट. आई वुड बी मेकिंग प्रॉब्ली लाइक 5 times द मनी. द काइंड ऑफ फील्ड आई एम इन पॉलिटिकल दिस एंड ऑल, अभी वो इंडस्ट्री कुछ एज सच डेवलप नहीं हुआ है. तो इट्स वेरी डिफरेंट. इवन इफ आई गो, जैसे इन्फ्लुएंसर मीट्स वगैरह होते हैं, आई हैव बीन टू 1 or 2 ऑफ देम. नो वन नोज मी देयर बिकॉज लाइक my kind of content is considered educational content. बाकी लोगों का content it's different man. It's like स्किन केयर करना, हेयर केयर करना एंड ट्रैवल व्लॉग्स करना. उनका अपना होता है, अपने नेटवर्क्स होते हैं एंड उनके ब्रांड डील्स वो सब बहुत अलग तरीके के ब्रांड्स करते हैं. काइंड ऑफ कंटेंट टाइम में आई एम नॉट अ टिपिकल इन्फ्लुएंसर. हाँ देखो, एजुकेशनिस्ट. इट्स लाइक दिस. ओके, जो फिटनेस वाले हैं लड़के हैं वो अपना बॉडी फ्लेक्स करते हैं. जो वुमेन हु हैव द लुक्स, हु डू स्किन केयर, हेयर केयर, दे कैन फ्लेक्स दोस थिंग्स. आई एम in a way flexing my brain, right? And that ka market is very different. I think I'll tell you who I felt personally really happy that these people know me. विजेंद्र चौहान जो है, जो कैजुअल टॉक, वो मेरे कंटेंट कंज्यूम करते हैं. ये बात सुन के मुझे बहुत खुशी हुई बिकॉज व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी में उनके इंटरव्यूज देखता था. हाँ. वो फिर समवन वाज टेलिंग मी दैट यू नो विकास दिव्यकीर्ति सर ने आपका एक वीडियो कहीं प्राइवेटली डिस्कस करा था. आई वाज लाइक इन्फ्लुएंस मैन. आई थिंक दोस थिंग्स बिकॉज those are the people I look up to. Because ये इंडिया में ना, in the current political climate or in the current general climate also, people who get popular are people like Elvish Yadav. हाँ. And I don't want to be in a society where those kinds of people are getting popular. Have you heard this song System? I want to live in a society where people like Vikas Divyakirti and those intellectual people को, if society looks up to them, that is a good sign. Because it depends a lot कि हम अपना young generation को कैसा role model दे रहे हैं. And I want these kinds of role models. I don't want that kind of role models. So when people I personally look up to, वो मेरा काम वगैरह नोटिस करते हैं, मुझे अच्छा लगता है. ध्रुव राठी follows, आकाश बैनर्जी follows me. Validation मिलता है इनसे. Not that I don't have to take that thing that seriously. But हाँ, इनसे being noticed is what feels better. You just pointed out Elvish Yadav and I asked you a question regarding the system. I'll tell you why. Because 2 years back when this song was released, तो Elvish Yadav was in Big Boss. He won. हाँ, he won. No hate to him or something like that. But उस टाइम पे ना इस वर्ड को एसोसिएट कर लिया गया था एल्विश यादव से, कि जहाँ एल्विश यादव का नाम जुड़ेगा या उसकी कोई स्टोरी लगेगी, मतलब एक मेजर चंक ऑफ स्टूडेंट्स ना, उन्होंने ये सिस्टम सॉन्ग बना दिया था. As much as I've thought about this thing, जो यादव कम्युनिटी है ना, यादव कम्युनिटी का ऑक्यूपेशन क्या रहा है? दे हैव बीन इनटू द काउ एंड कैटल रिलेटेड स्टफ, मिल्क को ये करना, एंड वो विलेजेस में रह चुके हैं. एंड ये जो थे वो अभी ओबीसी के इसमें आते हैं. हाँ, एंड यादव ओबीसी जो वर्ण सिस्टम में उनको शूद्र माना जाता था. हाँ, वो ओबीसी दलित जितने, जाटव और चमार जितने ये नहीं आते हैं. बट इट्स नॉट लाइक जो ब्राह्मण क्षत्रिय थे उनको इक्वल मानते थे कभी यादव को. हाँ, तो जो यादव कम्युनिटी था उन्होंने बहुत सोशल मूवमेंट्स रन करी है. इफ यू लुक एट द होल बिहार में लालू प्रसाद यादव एंड द होल आरजेडी वाला थिंग, इट केम फ्रॉम द होल यादव्स बीइंग मोबिलाइज्ड. इवन यहाँ पे समाजवादी पार्टी, आई थिंक इट वाज यूपी में, इट वाज यादव्स बीइंग मोबिलाइज्ड. तो यादव जो कम्युनिटी है उनको सोशली थोड़ा बैकवर्ड ही समझा जाता था. हाँ, एंड द थिंग बीइंग यादव कम्युनिटी से देयर वाज नो विजिबल यादव पॉपुलर फिगर. पॉलिटिशियंस आर फाइन बट यूथ फिगर्स कोई थे नहीं. हाँ, कि यादव कैन फील प्राउड कि देखो हमारा कम्युनिटी से होते हुए वो वहाँ तक पहुँचा. एंड what I feel in many ways was Elvish was seen as that. Right. Now I might not agree with the content he makes and all, not my cup of tea, but the people who supported him were predominantly from Yadav यूथ community. मॉडल की तरह लिया. Yeah. See, because in every community, जैसे for example कोई जाटव कम्युनिटी है, चमार है, ये जितने सारे कम्युनिटी हैं, they want कि अपने कम्युनिटी से कोई विजिबली कुछ करे. हाँ, सोशल मीडिया पे हो, थोड़ा इन्फ्लुएंस हो उस पर. हाँ, अच्छा इन्फ्लुएंस, बुरा इन्फ्लुएंस इज अ डिफरेंट कॉन्वर्सेशन. बट दे वांट कि हमसे भी कोई हमारा प्राउडली चमार होके अगर कोई कहाँ जहाँ पहुँचता है, लॉट ऑफ पीपल वुड सपोर्ट हिम. सिमिलर थिंग हैपेंड विद एल्विश ऑल्सो, दैट द
यादव कम्युनिटी जिनको थोड़ा बहुत इकोनॉमिक अभी थोड़ा अपलिफ्टमेंट मिल रहा है, दे वांटेड समवन फ्रॉम उनके, Recognition. हाँ, जो प्राउडली यादव होते हुए भी कहीं वो अपना पहचान बनाए, सोशल मीडिया पे अपना पहचान बनाए, एंड ही वाज सीन एज दैट. हाँ, तो एज मच एज आई डोंट थिंक आई कंज्यूम हिज कंटेंट, मेरे लिए नहीं है, हम तो थोड़े साउथ दिल्ली टाइप हो जाते हैं, बट जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं उनका तो वो नज़र वही है कि वो हमारा कम्युनिटी का है, यादव है, तो उसको हम सपोर्ट करें. रिसेंटली आई वेंट टू महाराष्ट्र, और वहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही मैं एयरपोर्ट से उतरा, द कैब ड्राइवर आस्क्ड मी, मतलब ही स्पोक समथिंग इन मराठी. सो आई वाज लाइक कि मराठी नहीं आती मुझे. सो ही जस्ट वेंट अवे. देन आई बुकड अ कैब, एंड फिर उसने वही चीज़ बोले, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ. देन समबडी फ्रॉम देयर, सम लोकल पर्सन हेल्प मी कि अगर आप मराठी नहीं बोलोगे तो वो शायद आपको पिक करने भी नहीं आएंगे. सो आई आस्क्ड हिम व्हाट टू डू नाउ. सो उन्होंने कहा कैब कैंसिल करके आई विल बुक अ कैब फॉर यू. सो देन ही स्पोक टू दैट ड्राइवर इन अ मराठी वे. सो ये सब हो गया, मैं कैब में बैठ गया एंड माई जर्नी स्टार्टेड. सो व्हाट हैपेंड बेसिकली कि ही सेड समथिंग अगेन इन मराठी, आई डोंट नो. सो आई वाज लाइक हिंदी में बोल दीजिए. फिर उन्होंने कोई रिप्लाई किया, मुझे समझ नहीं, मैंने इंग्लिश में बोल दीजिए, वो नहीं बोलेंगे. एमएनएस वाले थे क्या? पता नहीं ड्राइवर थे क्या था. आई वॉज ट्रैवलिंग टू नासिक, मुंबई टू नासिक. सो बेसिकली ये जो हिंदी वर्सेस रीजनल लैंग्वेजेस का कॉन्फ्लिक्ट है, विच इवन स्टार्टेड बैक इन 1956. यार देखो, ये वाला जो हुआ है तुम्हारे साथ, आई डोंट सपोर्ट दैट एट ऑल, बिकॉज यार टूरिस्ट हो जा रहे हो 4-5 दिन की, यू वोंट स्टे देयर फॉरएवर टू लर्न द लैंग्वेज. या इट्स नॉट feasible also. कैसे सीखेगा कोई 4 दिन में? हाँ, But not in just in Mumbai. I have heard about this in same in Chennai, in other parts of the country as well. I'll tell you the साउथ का पर्सपेक्टिव ये क्या है. जैसे नॉर्थ इंडिया के जो लैंग्वेजेस है, इफ यू लुक एट पंजाबी, गुजराती, मराठी, ऑब्वियसली यहाँ पे भी हिंदी विच यू कंसिडर, यहाँ पे तो कितने सारे ये थे. वहाँ पे कड़ी बोली था, हरियाणवी था, फिर यहाँ पे आई थिंक ब्रजभाषी, हाँ, अवधी. दिस आर ऑल डिफरेंट लैंग्वेजेस विद डिफरेंट ये, बट इन सम वे ऑब्वियसली ये अवधी, भोजपुरी, ये सबको मिला के उन्होंने हिंदी, Modernized Hindi. हाँ, उनको इस सबको कंग्लोमरेट करके हिंदी नाम दिया. इनका डाइवर्सिटी थोड़ा हद तक चला ही गया है. We call it modernized Hindi. हाँ, बट द थिंग इज ऑल दीज लैंग्वेजेस दे आर समवट सिमिलर. वो एक ही लैंग्वेज फैमिली से आते हैं, वो संस्कृत के डिराइव्ड लैंग्वेजेस हैं. तो एक हद तक, फॉर एग्जाम्पल इफ यू स्पीक हिंदी, पंजाबी 70% तक यू कैन मेक सेंस. इट्स नॉट दैट डिफरेंट, राइट? रूट मोर ऑफ इट इज सेम. बट जो साउथ के लैंग्वेजेस है, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ा, ये सेम रूट से नहीं आते हैं. आप अगर हिंदी जानते हो, आप 70-80% पंजाबी समझ लोगे, 30-40% मराठी भी यू कैन मेक सेंस, 0% तमिल, 0% तेलुगु. वाई? बिकॉज दिस लैंग्वेजेस आर ऑफ अ सेपरेट ब्रांच. इन द सेम थिंग हैपन्स इन नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट के जितने लैंग्वेजेस हैं, वो जैसे नागामीज हो गया, या फिर आप अरुणाचल इसमें चले गए, ये दे कम फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड जो टिबेटन लैंग्वेज के ये हैं. हाँ, वो भी आपको बिल्कुल नहीं समझेगा. तो ये जो हैं, दे डोंट कम फ्रॉम द सेम रूट. तो हमारा मानना है कि देखो, द नॉर्थ यू लर्न योर ओन हिंदी, हाँ, यू स्टडी इन हिंदी, एंड नॉर्थ में इंग्लिश बोलने के लिए ही स्ट्रगल होता है. जो लोग हिंदी बोलते हैं, मोस्ट ऑफ देम इंग्लिश उतना प्रोफिशिएंट नहीं है. हाँ, एंड यू आर नॉट लर्निंग एनी थर्ड लैंग्वेज. दो में खुश हो. नाउ कमिंग टू साउथ, वी लर्न आवर लोकल लैंग्वेज, वी लर्न इंग्लिश, वी आर क्वाइट प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश इफ यू सी साउथ में द रेट्स, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग अस टू लर्न वन मोर लैंग्वेज. तो वी फील कि भाई हम ऑलरेडी 2 चीज़ अच्छे कर रहे हैं, और तुम अब कह रहे हो कि हम तुम्हारा भी लैंग्वेज सीखें. तुम भाई नॉर्थ में इंग्लिश तुम ये ढंग से ये पढ़ नहीं पाते हो, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग अस टू रीड हिंदी. तो वो वी फील दैट वाई पुट वन दैट वायलेंस हो रही है बहुत ज़्यादा. आई डोंट सपोर्ट वायलेंस ऑफ कोर्स, बट द सेंटिमेंट बिहाइंड इट इज दैट, देखो, इंडिया में नॉर्थ बेल्ट का पॉपुलेशन इज हाई. Politically they'll have control. Now if they want, they can put these cultural impositions on other states, and we don't want to fall under that cultural imposition of Hindi. We don't have any problems with the language of Hindi. We have problem with Hindi being to be expected as the official language, और अगर तुम हिंदी नहीं सीखते हो तो तुम इंडियन माने नहीं जाओगे, or something like that. Because we are very happy in communicating in our own language, and अगर if you want to have a link language, English तो हम भी सीख रहे हैं, तुम भी सीख रहे हो, English में कर लो. So what do you prefer? I'm lived in the north for so much, and अगर तुम एक जगह पे रह रहे हो तो तुमको सीखना चाहिए. लेकिन पर्सनल प्रेफरेंस तो होती है. देखो,
अभी जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में तुम जा रहे हो, तुम्हारे कोई दोस्त है दिल्ली का, तुम जब तक उसके साथ हिंदी में बात नहीं करो फील नहीं आएगा. दैट इज ट्रू. हाँ, आई एम नॉट डिनाइंग दैट यू शुड नॉट लर्न हिंदी इफ यू आर लिविंग इन दिल्ली. ट्राई टू लर्न. आई थिंक मोस्ट पीपल पिक अप. साउथ इंडियंस जो यहाँ पे रह रहे हैं वो सीख लेते हैं 2-4 साल में. वो दिक्कत वो वाली बात नहीं है. दिक्कत वो होती है जब नॉर्थ वाले बैंगलोर में 10 साल से रह रहे हो, कन्नड़ा का एक लाइन नहीं आता, है ना. बिकॉज वी नेवर सेड कि हम नहीं सीखेंगे, बट we don't. But the thing is, the north person living in the south in Bangalore for 10 years, वो वहाँ का local language को वैसे समझता ही नहीं है. वो हमेशा अपने आप को थोड़ा अलग ही समझता है. The way he also opens up, then वो acceptance बढ़ेगा. But the problem is not that dude. The problem with the language thing, it stems from something else. I'll tell you example of Bangalore. अब बैंगलोर में जो जितने IT कंपनीज हैं, जितने ये हैं, उनका 70-80% of the employees they come from north states, because 70-80% of the population of country is from north. तो obviously वो वाले employees होंगे ही ज़्यादा. अब यहाँ पे इतने स्टार्टअप्स है, इतनी IT कंपनीज है, they are giving tremendous packages. एकदम 50 लाख तक लोग कमा रहे हैं. And now these people जब से आए हैं new North Indians employees, they are taking good nice apartment, nice गाड़ी, एकदम luxurious life. इससे दो चीज़ें हुई. एक तो प्रॉपर्टी रेट्स, रेंट सब बढ़ गए. एंड जो लोकल कन्नडिगा है, जो सालों से वहाँ रह रहा है, वो देख रहा है यार ये तो कोई बाहर से आ गया, अब इसने यहाँ बड़ा घर भी ले लिया, गाड़ी भी बढ़िया चला रहा है, ये मेरा स्टेट है, मेरा स्टेट में मेरा ही वो रुतबा नहीं है. हाँ, जैसे आई विल गिव यू अ काउंटर एग्जांपल. जैसे फॉर एग्जांपल नोएडा है. यहाँ यू हैव, आई थिंक जाट्स आर द डोमिनेंट यहाँ पे. मान लो यहाँ पे टुमारो यू हैव लाइक 50% चेन्नई वाले लोग, Tamilians, driving all vehicles and doing dominance. They'll be first insecure, right? Because उनका dominance fail की ये होता है. तो कर्नाटक में ये हुआ था. बैंगलोर में जो dominant ये थे, जो classes थे, who had all थोड़ा money वनी था, they started feeling insecure कि ये outsiders are having more money than us, bigger cars, bigger luxury. तो they felt like यार I think इनके कारण ही हमारे जो problems हैं. हाँ, वो अपने ही सिटी में they feel थोड़ा कि हमारा वो power चला गया. Same thing happening in Maharashtra also. मुंबई में आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे ऐसे सोसाइटीज़ है लग्जरी वाले जो गुजराती हैं, कुछ जैन हैं, जहाँ पे मराठियों को घर खरीदने नहीं मिलता है. हाँ, तो दिस कम्स फ्रॉम दैट फीलिंग कि यार देखो हमारा स्टेट है और वाई आर दीज पीपल इन द टॉप एंड वी नॉट. हाँ, तो दैट थिंग मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन लैंग्वेज के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे. अभी रिसेंटली इन तेलंगाना दे सेड मारवाड़ीज गो आउट. हाँ, ये भी वहीं से आ रहा है. इकोनॉमिक एंजाइटी जो है, इट मैनिफेस्ट्स इनसिक्योरिटी. हाँ, इनसिक्योरिटी यही है. सो एक जैसे कि आप इतना ज़्यादा आप इंस्टा पे एक्टिव हैं, आप देखते रहते हैं चीज़ें, तो आपके भी कुछ पर्सनल कनेक्शंस होंगे, फ्रेंड्स होंगे. कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको फ़ोन करके बोल दिया हो रैंडमली हमारा प्रमोशन कर दो, समथिंग लाइक दैट? प्रमोशन इन द सेंस कि यार मैं अभी आईएएस नहीं हूँ यार, अभी एमएलए एमपी थोड़ी होंगे बेचारे, वो भी कर नहीं पाते. नहीं मतलब कि हमको शूट आउट दे दो या हमको प्रमोट कर दो, आपके इतने फॉलोअर्स हैं, मतलब रैंडमली आउट ऑफ नोवेयर कि जिससे कभी सालों से बात नहीं हुई, ही दैट पर्सन इज फॉलोइंग. आई विल टेल यू वन थिंग. आज के डेट में ना, योर सोशल मीडिया प्रेजेंस इज करेंसी, सोशल स्टेटस. द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ इज दैट मेरे जितने सिचुएशनशिप्स थी पहले की, जिससे मैं घोस्ट हो गया था, जो मेरे बम्बल मैचेस थी, जो भी थी पहले की. हाँ, अच्छा, डू यू यूज बम्बल? आई थिंक यंग पीपल वी ऑल हैव सम पॉइंट हैव डन दैट. हाँ, बिकॉज़ बाहर जाके ऑर्गेनिकली आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल मीट, एंड नाउअडेज इट्स ऑल डिजिटल. तो लास्ट 3-4 years व्हाटएवर लाइक सिचुएशनशिप्स और व्हाटएवर आई हैड, जैसी मेरी सोशल मीडिया प्रेजेंस आई थिंक क्रॉस 100K और समथिंग लाइक दैट, लॉट ऑफ देम स्टार्टेड टेक्स्टिंग मी आउट ऑफ नोवेयर. यो वी ऑलवेज न्यू यू वुड मेक इट, ओ माय गॉड दिस दैट, है ना. तो क्या रिप्लाई होता था? टिपिकली आई एम लाइक ओके थैंक यू, समथिंग लाइक दैट, राइट. अदरवाइज समथिंग लाइक ठुकरा के मेरा प्यार नहीं देखो, इतना दिल लगाने वाला ये सब करना नहीं चाहिए आज के ज़माने में. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर आप फ्यूचर में किसी पार्टी को ज्वाइन करते, विल यू ज्वाइन अ पार्टी? सी देयर आर 2 things, ओके. अगर तुम पार्टी ज्वाइन करते हो, पार्टी के टॉकिंग पॉइंट्स होते हैं, तुम्हारा फोकस उसी पे रहता है. तुम उसके बियॉन्ड ज़्यादा बोल भी नहीं सकते. एंड एज अ पार्टी स्पोक्स पर्सन, अ लॉट ऑफ टाइम्स यू आर नॉट अलाउड टू पुट योर पर्सनल ओपिनियन, स्पेशली समवन लाइक मी जिसका सारा पर्सनल ओपिनियन कंट्रोवर्शियल निकलता है. मैं कुछ भी बोलता हूँ, कोई ऑफेंड हो जाता है. इंडिया में तो पता नहीं ऐसी ही हालत है. दैट इज नंबर 1. नंबर 2, यार देखो, फॉर एग्जाम्पल, इट्स नॉट लाइक पार्टीज हैवंट लाइक रीच्ड आउट टू मी, दे डिड. द प्रॉब्लम इज, कौन सी पार्टी थी? I can't reveal that of course, but you would know if कितने ही पार्टीज हैं इंडिया में. एक पार्टी तो कभी करेगा ही नहीं, उसके अलावा जितने हैं उन्होंने करा हुआ है. हाँ, तो खैर,
व्हाट आई एम सेइंग इज, देखो सेंटर में ठीक है एक सर्टन गवर्नमेंट है, उसको मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट के इसमें प्रॉब्लम्स नहीं थी, होती हैं, उसमें भी बहुत चीज़ें होती हैं। बट अगर तुम वो किसी पार्टी के साथ हो जहाँ जिनका किसी स्टेट में उनका गवर्नमेंट है, मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज तुम बोले कि तुम तो हमारे पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहे हो। आई वॉन्ट टू बी इन अ सिचुएशन जहाँ पे आई वॉन्ट टू कॉल अ स्पेड रिगार्डलेस ऑफ द पार्टी। तो कभी इलेक्शन का सोचा? इलेक्शन यार, सी द थिंग इज ना, एज समवन हु हैज वर्कड इन पॉलिटिकल कंसल्टिंग, व्हाट आई कैन टेल यू इज यू हैव टू बी वेरी वेरी वेल ऑफ फाइट इन इलेक्शन। पैसे बहुत लगते हैं, रिटर्न कुछ भी नहीं होता है। एक जमाना था जब कोई बहुत ही हाई लेवल पे काइंड ऑफ गैम्बल है ये। गैम्बल तो नहीं कहूंगा, बिकॉज इट्स नॉट रैंडम, इफ यू प्ले योर कार्ड्स वेल यू कैन विन। व्हाट माई पर्सनली पर्सपेक्टिव से क्या है ना, कॉस्ट बेनिफिट नहीं है। द कॉस्ट ऑफ कंटेस्टिंग एन इलेक्शन, नॉट जस्ट इकोनॉमिक कॉस्ट, लॉट ऑफ अदर, सी द थिंग इज ना यार, एज अ पॉलिटिशियन योर एवरी मूव इज बीइंग मॉनिटर्ड। कोई कैमरा लेके खड़ा है, तुम अपना फ्रीली रह भी नहीं सकते, और तुम जो हर एक सेंटेंस बोल रहे हो उस पर 10 लोग टिप्पणी करेंगे। प्राइवेट लाइफ आपकी कुछ नहीं बचती। प्राइवेट लाइफ खत्म हो जाएगा। एंड नहीं, फॉर मी समवन लाइक मी, आई थिंक आउट लाउड, आई मेक लॉट ऑफ कंटेंट क्रिटिसाइजिंग, मैं खुल के बात करता हूँ कोई भी चीज़ पे, आई डोंट लाइक होल्डिंग बैक, अनलेस ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा कॉन्सिक्वेंस ना हो। आई डोंट लाइक होल्डिंग बैक, कुछ है तो बोल देता हूँ मैं। आई लाइक नहीं बोलता हूँ तो मैं रात में सो नहीं पाता हूँ कि यार ये सोच यार नहीं बोल पाया, मैं बोल देता हूँ। लेकिन मेरे जैसा कोई बंदा पॉलिटिक्स में चला गया ना, आई हैव टू यू नो पुट अ दिस, वही चीज़ें बोलो जो आपके वोटर्स को पसंद आती हैं, हाँ वही चीज़ें बोलो जो पार्टी के लिए वोट लाएंगी। तुम अपना इंडिपेंडेंटली बोल भी नहीं सकते। सो राइट नाउ आई डोंट हैव एनी यू नो दिस प्लान्स ऑफ कंटेस्टिंग। व्हाट आई सी माई सेल्फ, यू नो जय दीपक, राइट, he is not affiliated to any party, but he's a thought leader behind the right. I get it. Not BJP, I would say the whole Right, Hindutva right. right. And you have obviously Anand Ranganathan, things of that sort. Left में we don't have many of them. We have people like Dhruv Rathi and all, but Dhruv Rathi is more of a content creator than a political thinker. True. हाँ, उसका ideology क्या है मुझे आज तक समझता Can नहीं you है। see It's Laksh as the political thinker in near I future? aspire to, हाँ, because I want to see, the thing is ना, conversations जो है ना, राइट की तरफ से तगड़े लोग आ रहे हैं। जय साई दीपक, आई डोंट एग्री विथ हिम ऑन एनीथिंग, बट आई एडमायर हिज गट्स टू गो एंड स्पीक अनकंफर्टेबल थिंग्स इतने लोगों के सामने, भले ही इसको दुनिया भर का हिट मिलता है। हाँ, आई डोंट एग्री विथ हिज पॉलिटिक्स, विचारधारा सेम नहीं है, बट वो इंसान का जो कैरेक्टर है, दैट इज व्हाट आई सी इज रेस्पेक्टेबल। You see him as a good opponent. Not opponent, I'll say. हाँ, enemy तो नहीं, opponent, हाँ, good But the opponent. thing is, लेफ्ट का क्या था, लेफ्ट के लोग थे यार, लेफ्ट के लोग कन्हैया कुमार जैसे लोग थे, कितना धोखा दिया है लेफ्ट वालों ने। मैं जब when I was getting into politics, I used to look up to the guy. हाँ, उसका he had an ideology. उस टाइम I was too naive to you know pick things from his ideology कि क्या गलत है क्या सही है, but he was someone who was out there, who was loud, who was giving opinions. हाँ, एक जमाना ऐसे हो गया था, मेरे दोस्त वो अपने हॉस्टल में पोस्टर लगाते थे कन्हैया कुमार का, उतना he was popular। फिर क्या किया उसने, he said you know capitalism bad, कांग्रेस bad, उस टाइम कांग्रेस का सरकार था, obviously अब कांग्रेस में जाके जुड़ गया है। and now look at his speeches, there is no coherent ideology, there is no एक, for example जय साई दीपक, उसका एक नैरेटिव है, प्रॉपर नैरेटिव है, वो अपना इंडिया का हिस्ट्री अपने लेंस में बता सकता है कि ये चीजें हुई थी, ये सही थी, ये गलत थी। लेफ्ट में कौन है जो पूरा बताता है? एंड यू हैव समवन लाइक एन अरुंधति रॉय, बट आई फील नहीं भाई, no, not that when you say कि वो पूरा Indian state is you know like a what is he calls the Indian state as a colonial imperial and some stuff like that। हाँ, हर चीज़ ऐसा नहीं होता। see you should also remember Indian state जो है ना, इसकी संविधान हमारे अम्बेडकर ने लिखा है, हमारा ही स्टेट है। मैं कभी इंडियन स्टेट को डिसोन नहीं करूंगा। कंट्री इज आवर्स, that is never into question। she goes as far as to questioning the concept of India, which is like I like the India. I was just watching an interview of Farooq Abdullah, mini clip I'll say. So some journalist asked Farooq Abdullah, "Are you an Indian?" Farooq Abdullah sir literally shouted at that journalist in mid conversation that how can you question my integrity? How can you question even this single thing that I am even an Indian? ये बात आपको मतलब he just, तो this is the whole concept which is going on कि अगर कोई इंसान कोई भी थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर रहा है तो दे विल थिंक कि अरे ये तो भाई एंटी गवर्नमेंट नहीं लेते हैं उसे एंटी नेशनलिस्ट लेते हैं। ये बहुत बड़ा नैरेटिव चल रहा है। सो अब यार देखो, फॉर एग्जांपल द एम्बलम तोड़ने वाला जो चीज हुआ, वन ऑफ द कश्मीरी पार्टीज हैव कंडेम्ड इट। तो थोड़ा कुछ चीजें हैं जो वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन एज इंडियंस, राइट। देखो वी आर अ वेरी डाइवर्स कंट्री, हर
यू नो इतने सारे स्टेट्स, इतने लैंग्वेजेस, इतने कास्ट, इतने डिफरेंसेस हैं. What makes us all Indian? There be something we should unite on, right? अगर वही नहीं तो इंडिया ही नहीं है. इंडिया का तो डायलॉग ही कहते हैं यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी. Yeah, but you should have something to unite on. It's correct. So our, at least the view, at least I right now I'm happy that Congress party is taking that view, is we are uniting behind the constitution, constitutional values. At least this is something we all agree on. Huh. Religiously we might not agree, lifestyle we might not agree, languages might not agree. At least this. दैट वी शुड ऑन ऑल एग्री. बट देन वही एम्बलम तोड़ लेते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है, बिकॉज है ना. So हम लोग will go to the rapid fire round. I'll be asking you a question, some question related to your life, personal life, and you have to just give a one worder or one liner. That's it. Favorite movie? Favorite movie? I said I don't really watch a lot of movies, honestly, man. Your favorite song? Favorite song? Probably some Telugu romantic song. Okay. Movie? Wait, let me tell you. Political movies. I think there was that. अरे यार उसमें वो सी आइडियोलॉजिकली आई डोंट एग्री विद दैट मूवी. उसमें वो मेनन होता है ना, आई थिंक के मेनन इज हिज नेम और समथिंग, जिसमें ही इज लाइक अ राजपूत रॉयल. गुलाल. हाँ गुलाल. that was very fiery ऐसा मूवी. आरंभ है प्रचंड जिसमें गाना था. That is गुलाल. वो that song has become cringe. हाँ. But जब वो आया था I was like अरे बाप रे, ये लोग कुछ कर रहे हैं तो बड़ा सा. Okay. Any regrets do you have? Regrets? See, largely मेरे को लाइफ में जो करना था, मैंने आफ्टर कमिंग फ्रॉम कॉर्पोरेट, मैंने कॉर्पोरेट में काम कर लिया. शायद कॉर्पोरेट से आने के बाद तुरंत अगर एक्टिविज्म में आ जाता तो रिग्रेट होता, क्या पता वहाँ पे अच्छा लाइफ हो, कंफर्टेबल लाइफ हो. बट नो, आई हैव टेस्टेड दैट. आई हैव टेस्टेड आई वर्कड इन बैंकिंग, आई वर्कड एज अ पॉलिटिकल कंसल्टेंट विद अ पार्टी, आई हैव ऑल्सो वाज पार्ट ऑफ माई ओन स्टार्टअप. तीनों चीज़ें करी हुई है. एंड नाउ दिस इज माई फोर्थ थिंग. दिस इज ऑल्सो वेरी रिसेंट. आई स्टार्टेड, जो रील बनाना होता है ना, मैंने जनवरी में स्टार्ट किया है. इट इज नॉट दैट लॉन्ग. जनवरी टू दिस इज वॉट September was 20K to 420K. So 400, like 4 lakh followers in a short term. So that has been very fast. Regret, I don't know. I think it's fair. Secret of this growth? See, authenticity. And the thing is now, never, if you're on social media wanting to talk about political topics, trends पे मत पढ़ो. हाँ, जो चीज़ ट्रेंडिंग में इसी पे बोल दूंगा नहीं. अपना एक विचारधारा रखो और अपने तुम्हारे लिए जो चीज़ जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उस पर कंटेंट बनाओ. बिकॉज लॉट ऑफ टॉपिक्स ट्रेंडिंग में नहीं थी, मैंने उस पर कंटेंट बनाया, तब जाके लोग उसके बारे में बात करना स्टार्ट की. ऐसे चीज़ों को लो जो तुम्हें अपने हिसाब से लगता है कि इट शुड बी इंपॉर्टेंट, एंड यू एक्सप्लेन टू पीपल व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. हाँ, तो ट्रेंड के पीछे पढ़ोगे ना, कोई उसी ट्रेंड के पीछे पढ़ रहे हैं, कहाँ ही जाओ. तो कुछ अलग कैसे करोगे? हाँ, कॉर्पोरेट लाइफ और इंस्टाग्राम लाइफ? पर्सनली अगर I did not have these opinions and I did not have anything, I would have picked a corporate life because stable है. हाँ, not everyone wants to have that ऐसे ये. And the worst part is not even that, man. This being in my position where I am, इतना जगह से hate मिलता है ना, इतना जगह से hate, कभी डर लगता है. धमकी आई है? हाँ, आती है, रोज आती हैं. तुमने कल ही देखा होगा, एक बोल रहा था मैं पंडित बामन पावर मार दूंगा तुम्हें, समथिंग. So how do you deal with all this? Ignore. What can I do? क्या करना Have you चाहिए? ever filed a case? नहीं. अच्छा देखो, जब मेरा पेज सस्पेंड हुआ था ना, अच्छा, it was suspended. मास रिपोर्ट कर दिया था इन्होंने, कॉपीराइट स्ट्राइक लगा के, हर एक रील पे कॉपीराइट स्ट्राइक लगा दिया. एंड वो कॉपीराइट तो एआई से चेक करता है. तो माय पेज वाज सस्पेंडेड एंड दे सेंड अ डीएम ऑन माय पर्सनल अकाउंट. दे से देखो वीडियो बनाओ माफ़ी मांगते हुए ब्राह्मणों को और ये ठाकुरों को जो भी, एंड फिर तुमको वेश वापस दे देंगे. इट्स अ ह्यूमिलिएशन रिचुअल बेसिकली. एंड नो, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. एंड आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन. यार देखो ऐसा पेज गया हुआ है, इतने कास्टलर सब फेंक रहे हैं. पुलिस वाले बोलते हैं एट्रोसिटी, आपको पता है एससी एट्रोसिटी क्या होता है? बोला हाँ, तो दलित, आप दलित हो, आप तो दिखते नहीं हो ऐसे. फिर से वही वाली बात हो गई. हाँ, अरे यार उनके फटे कपड़े पहन के जाओ वहाँ पे. ऐसा है इंडिया में, वो इमेज ही ऐसा है. सी, आई मेक पीपल अ लॉट वेरी अनकम्फर्टेबल बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ थिंग्स. लोगों का कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन SC/ST क्या होता है कि वो ऐसे थोड़ा ऐसे रहेगा, वेल ऑफ नहीं होगा. या नो, इट्स नॉट जस्ट इकोनॉमिक दिस, इट्स दैट योर कॉन्फिडेंस, द वे यू स्पीक इंग्लिश. स्पीकिंग, आई एम एजुकेटेड दलित एक्टिविस्ट, लॉट ऑफ पीपल मेक्स देम अनकम्फर्टेबल. तुमको कैसे वो ये करेंगे? वो हमेशा क्या सोचते हैं, कोई JNU वाला होगा ऐसा लगा के, फिर हम उसको एंटी नेशनल बोल देंगे. हाँ, जो टिपिकली वैसे ही निकलते हैं ना. हाँ, फिर उसको people sometimes call me, are you a leftist? Why? Just because I wear this गमछा. यार मुझे भी स्टार्टिंग में वही लग रहा था honestly.
So, last question. Any advice which you want to give to the students, to the younger generation? Anything apart from casteism or any kind of social stigma? Anything which you want to give them for their better life, for their better future? सी टू थिंग्स ओके, अगर तुम्हें कोई भी पॉलिटिकल चीज़ को समझना है एंड तुम्हें पता नहीं है कि कितना सच है कितना झूठ है, व्हाट यू डू इज दैट यू ट्राई टू रीड अबाउट द सेम थिंग फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स. राइट वाला क्या कह रहा है उसका सुन लो, लेफ्ट वाला क्या कह रहा है उसका सुन लो, लिबरल वाला क्या कह रहा है उसका सुन लो. हाँ, सारे लोगों का सुन लो. अब सारे लोग जो कह रहे हैं उनमें से जो कॉमन है ना वो सच होगा. हाँ, दैट इज नंबर वन. हाउ यू मेक सेंस ऑफ न्यूज़ ऑल्सो दिस टाइम. हाँ, लेफ्ट वाले पेपर्स का पढ़ लो, राइट वाले पेपर्स हिंदू को पढ़ लो, सबको पढ़ लो, जो कॉमन होगा वो सही होगा. बिकॉज सब अपना अपना व्यू से देखेंगे या तुमको अपना एक ये चीज़ देंगे. एंड सेकेंड, भाई यूथ ऑफ इंडिया जो यंग पीपल है, अगर तुम लोग पॉलिटिकल मुद्दों पे नहीं बोलोगे, तुम लोग अपना ओपिनियन नहीं रखोगे, तुम लोग अवेयर नहीं होगे, तो देश कौन संभालेगा. यू आर द वोटर्स ऑफ दिस कंट्री, यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री. एंड जितना ही मेहनत तुम बाकी चीज़ों में डाल रहे हो, ट्राई टू ऑल्सो बी पोलिटिकली ओपिनिएटेड. हाँ, इट्स नॉट लाइक आई एम टेलिंग यू टू लीव योर जॉब और लीव योर एजुकेशन. उसके साथ साथ हैव सम रुचि फॉर पॉलिटिक्स. हाँ, पता करो कि क्या चल रहा है देश में. एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट मोदी, अदानी एंड ऑल दैट. इवन लोकल लेवल, स्टेट लेवल पॉलिटिक्स. बिकॉज हमारा सिस्टम जैसा पॉलिटिकल सिस्टम है, यू डोंट वोट फॉर मोदी और एनीवन, यू वोट फॉर योर लोकल कैंडिडेट. हाँ, तो बी इन्वॉल्व इन दैट पॉलिटिक्स ऑल्सो. बिकॉज बहुत लोगों को ये पता होता है कि मोदी ने अपने हिस्ट्री में क्या किया था, बट ये नहीं पता होता कि खुद का एमएलए या एमपी कौन है. तो बी इन्वॉल्व इन दिस थिंग्स. एंड इफ यूथ ऑफ इंडिया, बिकॉज देखो यार, वी आर कंट्री ऑफ भगत सिंह, वी आर कंट्री ऑफ सुभाष चंद्र बोस. वो उस टाइम देश के लिए जाके हिटलर से मिलकर आए थे. भगत सिंह वॉज व्हाट 21 ही वॉज व्हेन ही वॉज हैंग्ड. वो ट्रेडिशन से आ रहे हैं. अगर हम आज के ज़माने के लोग सोचेंगे नहीं पॉलिटिक्स इज नॉट फॉर अस, देन तो देश को कौन ही बचा पाएगा. आई थिंक अ लार्ज रीजन वाई कंट्री इज इन दिस सिचुएशन इज द यूथ आर नॉट A एम्पावर्ड. kind of apolitical. या डोंट बी एपॉलिटिकल, लेफ्ट हो राइट हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता तुम क्या ओपिनियन ले रहे हो, बट बी पॉलिटिकल एटलीस्ट. कुछ तो करो. Yeah, have an opinion, man. Having an opinion आजकल it's become such a controversial thing. हाँ. I get your point. तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक केवी का बच्चा जब आईआईएम में गया और कैसे वो इंस्टाग्राम पे आया, उसने क्या समस्याएं झेली और कैसे जाना कि आखिर में कास्टिज्म कैसे चल रहा है देश के अंदर, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के अंदर. जुड़े रहिए हमारे साथ द न्यू स्टूडेंट में. धन्यवाद.